Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and dear students, we are discussing definite integral for class 12th RBSc mathematics. So guys, this is our lecture number 10 on definite integral. In the previous lectures, we have started properties of definite integral. Yes or no? Yes. So where we have already completed up to fourth property. P4 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. Now let's start with property number 5. Let's start with dear students property number 5. So property number 5 we have कि if the integral is like this कि minus a to a fx into dx. If you have minus a to a fx into dx, then we can have two cases. Guys, फिर मेरे पास यहाँ पर दो केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस क्या बनेगा देखिए, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 इफ fx is odd function. If fx is odd function, then this integral will be equals to 0. Okay, or we can have 2 times 0 से a fx into dx if fx is even function. If fx is even function, then we can have 2 times 0 से a fx into dx. Okay dear students, so first of all we will see what does it mean. What do you mean by even function and odd function? Okay, I think this red marker is visible है या फिर नहीं है? Okay, now look, देखिए minus a to a fx dx, it can either be equals to this or this. Okay, so first of all we will discuss कि what do you mean by these odd function and even function. Okay dear students, so look, let's suppose we have fx equals to x square. Okay, and we have another function fx equals to x cube. Okay guys, now find f of minus x. यहाँ भी f of minus x ही फाइंड करें. मैंने यहाँ भी f of minus x फाइंड किया और यहाँ भी मैंने f of minus x ही फाइंड किया. ओके गाइज, नाउ माइनस x का क्या मतलब है? नहीं, f of minus x का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ मेरा वेरिएबल है उसको मैं लिख दूंगा माइनस x का. ओके, नाउ यहाँ भी क्या होगा आपका, सेम यही माइनस एक्स का होल क्यूब, माइनस एक्स का होल क्यूब. ओके, दोनों मैंने सेम काम किया है कि f ऑफ माइनस एक्स मीन्स वेरिएबल को मुझे रखना है माइनस एक्स, तो यहाँ भी मैंने सेम काम किया. नाउ गाइज, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या बनेगा मेरा, माइनस का एक्स क्यूब. ओके, now what is this x square? X square is equals to fx, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, माइनस ऑफ fx. ओके गाइज, सो देखिए हमारे पास यहाँ से कंडीशन निकल के आती है इवन और ओड फंक्शन की. देखिए कि इफ f ऑफ माइनस एक्स जो है वो मेरा इक्वल हो fx के, तो फिर हम उसको बोलते हैं गाइज इवन फंक्शन. ओके, एंड व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx, तो बच्चों हम उसको बोलते हैं ओड फंक्शन. आर यू गेटिंग इट? इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, तो हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन. एंड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx, then we call it odd function. Okay, now let's take another example. Okay guys, we have fx equals to sine x. Okay, then how will we check whether this function is odd or even? Very simple कि sir, I will now find f of minus x.
सो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये हमने बचपन में पढ़ा है, दिस इज माइनस टाइम साइन एक्स डियर स्टूडेंट्स, and fx is this. Okay, so what we are getting here, we are getting कि f of minus x is equal to minus times fx, then this is odd function. So what will I say? कि sin x is a odd function. Okay, now let's take another example. If we have fx equals to, dear students, cos x, then f of minus x, ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी cos ऑफ माइनस एक्स डियर स्टूडेंट्स. ओके, एंड विच वी नो इट इज cos ऑफ x. सो यहाँ पे बच्चों मेरा क्या आ रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स, देयर फोर दिस फंक्शन इज even function dear students. Are you getting it? So this is how we check whether a function is odd function or even function. कैसे चेक करते हैं हम लोग, odd है कि even? We simply find f of minus x. Okay guys, now let's take another example. If I have fx equals to x upon 1 plus x square, तो वेरी सिंपल, हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे. दैट मीन्स जहां जहां मेरा x है उसको चेंज कर दो माइनस एक्स से. Isn't it? Okay, now this will be minus of x upon 1 plus x square. Now guys, this is what? fx ही तो है. So what we are getting, fx is f of minus x is equals to minus times fx. Then ये मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन बन जाएगा. तो सभी चेक कर लेंगे कि कब मेरा फंक्शन ओड होगा, कब मेरा फंक्शन इवन होने वाला है. सो कैन आई राइट, इवन फंक्शन कब होगा मेरा, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. एंड ओड फंक्शन कब होगा मेरा, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स, माइनस टाइम्स एफ एक्स. ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी का पूरा निचोड़. ओके गाइज, ना इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे और साथ में ये जानेंगे कि इस प्रॉपर्टी को हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है. सो अभी सबसे पहले ये देख लो कि कहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे, वेयर वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको लिमिट दिख जाए माइनस ए से ए टाइप का, तो वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. समझ आ गया ना सबको? प्रॉपर्टी फोर्थ जो हमारा था, सबको याद है क्या था, कि ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. सो वेयर वी यूज टू अप्लाई दैट प्रॉपर्टी, P4 हम लोग कहाँ यूज करते थे कि लिमिट्स पुट करने पर, लिमिट्स जैसे मैं बोलता हूँ b माइनस एक्स पुट करने पर अगर मेरा फंक्शन चेंज हो जाए तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते थे. तो बच्चों आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे. ओके, सो जब भी मेरे पास लिमिट हो माइनस ए टू ए, जैसे कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और माइनस 1 से 1, इस टाइप की जब भी आपके पास लिमिट आ जाए, देन वी विल डियर स्टूडेंट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी नंबर 5. ओके गाइज, नाउ ये ऐसे भी हो सकता है a माइनस ए. ओके, बिकॉज वी नो कि जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है वो क्या बोलती है, आप ऐसे लिमिट्स को चेंज कर सकते हो, है ना. तो इस लिमिट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ओके, तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी सेम हो, डिफरेंस जो केवल नेगेटिव में हो. ओके, इफ अपर लिमिट इज माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट, इफ अपर लिमिट इज minus times of lower limit, then we apply this property. Okay, now let's look for this properties proof. चलिए इस प्रॉपर्टी का अब हम लोग प्रूफ देखते हैं. So dear students, we have minus a to a fx into dx. अच्छा, so हमने सर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, so what was that property कि you can change the limits, sorry,
आप लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे है ये माइनस ए टू ए। सो गाइज मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, पहले माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, देन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, कैन आई डू दिस? यस सर, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। ओके गाइज, नाउ लेट्स से दिस इज आवर I1, इसको मैंने I1 बोल दिया, एंड वी विल हैव जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नाउ मैं I1 को बच्चों अलग से सोल्व कर रहा हूँ, मैं I1 को अब अलग से सोल्व कर रहा हूँ। सो व्हाट विल बी दिस गाइज? दिस विल बी जीरो टू ए। ओके, सो I1 क्या है मेरा? I1 इज माइनस ए टू जीरो एफ एक्स इंटू डियर स्टूडेंट्स डी एक्स। ओके, नाउ यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन अप्लाई करूँगा कि मैं x को चेंज कर रहा हूँ माइनस y में। ओके, आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों किया मैंने। ओके, नाउ सो गाइज यहाँ से बन जाएगा मेरा डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई, एंड योर इंटीग्रल विल चेंज into guys f of minus y, or dear students dx will be replaced by minus times dy। ओके, क्लियर है? मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया कि x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ओके, योर लिमिट्स विल ऑल्सो चेंज्ड। ओके, सो इफ योर x इज लोअर लिमिट दैट इज माइनस a, देन योर y विल बी a। ओके गाइज, तो y हमारा क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। एंड जब आपका x लो अपर लिमिट हो दैट इज जीरो, तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरी जीरो। यस और नो? यस। नाउ वी हैव स्टडीड ए थ्योरम, सॉरी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि यू कैन चेंज द लिमिट्स, आप लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, बट डिफरेंस किसका आता है? एक मेरा माइनस साइन का आता है। So guys, I can write this as 0 to a f of minus y into dy, और माइनस माइनस मेरा ये प्लस हो गया। So we have used here property, I think that was property number 2. Okay, we have used here property number 2 using P2. Okay, now so what we are getting here कि sir I1 is equal to we have 0 to a f of minus y into dy। now सबको याद होगा मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि you can change the variable of integration, so I can write is as f of minus x into dx। so guys, this is I1। okay, this is our I1, so please take a screenshot। okay, now so guys we have apply here property number first। now guys जो मेरा I है वो क्या बन जाएगा? I मेरा क्या बन गया? देखिए I इक्वल्स टू I1, एंड I1 इज दिस, सो 0 से a f of माइनस x इंटू डी एक्स, प्लस गाइज वी हैव 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके गाइज, यस। सो बाकी सब मैं हटा रहा हूं। सो लास्ट रिजल्ट मेरा ये आ गया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन हैव टू केसेस। ओके, तो यहां से गाइज मेरे पास दो केस आएंगे। केस वन कि इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ओके गाइज, अगर एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है तो क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा एफ एक्स के। सो योर इंटीग्रल विल बी फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। एम आई राइट? यस। नाउ ये आपका 2 टाइम्स हो गया 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके गाइज, एंड वही मेरा केस 1 है। नाउ केस 2, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, अगर एफ एक्स मेरा डियर स्टूडेंट्स ओड फंक्शन है, सो क्या होने वाला है? दिस विल बी माइनस ऑफ दिस।
Am I right? F of minus x will be minus of fx. Then your integral will be from 0 to a. ये जो आपका माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स है ये बन सक जाएगा मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू ए दिस. ओके गाइज, ये क्या हुआ, दोनों कैंसल और वी गेट 0. सो ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी का प्रूफ था डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया. ओके, सो दिस वॉज अवर प्रॉपर्टी नंबर 5. और इसको हम कहाँ यूज करेंगे मैंने आपको सारा बता दिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6. Okay guys, now according to your RBSc book dear students, this is property number 6. okay, so जो आपकी property number 5 है उसका कहीं भी यूज नहीं है, that's why मैं उसको नहीं करवा रहा. okay, so this is property number 6. and dear students, जहाँ भी आप property को यूज करें तो you must mention at the end कि आपने कौन सी property यूज की है. so you must learn all the प्रॉपर्टीज. आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए उनकी सबकी कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं. ओके, स्टेटमेंट्स तो नहीं बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशंस बोलेंगे. ओके, एंड यू विल राइट द एक्सप्रेशन एट द एंड जहां जहां आप उसको अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज प्रॉपर्टी नंबर 7. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आरबीएसई ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है. 5th इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं करवाया. सो गाइज दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 7. सो गाइज वी हैव कि 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू अनदर. वी हैव टू केसेस हियर. इफ 2 times 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, इफ f of 2 minus x equals to f of x, and if f of 2a minus x equals to minus of fx, then dear students we will have 0. okay, yes, so please students आप ऐसा मत सोचना कि ये जो है वो मेरा इवन फंक्शन है. ओके, ये इसको आप इवन फंक्शन मत बोल देना कि अगर मेरा एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये मुझे ऐसे मिल जाएगा, बिकॉज इवन फंक्शन के लिए वो केवल वही कंडीशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. बट हियर वी हैव एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स. सो गाइज हम इसको इवन फंक्शन के साथ में रिलेट नहीं करेंगे. इस प्रॉपर्टी को मैं इवन और ऑड फंक्शन के साथ में रिलेट नहीं करूँगा. वो प्रॉपर्टीज आपकी तब अप्लाई होती है जब यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है वो केवल माइनस साइन का हो. ओके, सो डोंट रिलेट दिस प्रॉपर्टी विथ इवन ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी. ओके, नाउ सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं. लेटर वी विल स्टडी कि हम इसको कहाँ अप्लाई करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. सो गाइज वी हैव i इक्वल्स टू 0 से 2a fx into dx, my dear students, this. So can I split this from 0 to a fx into dx plus a to 2a fx into dx? Yes, I can split it because I will write the reason कि सर you can write a to b fx dx को आप लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस b to c fx into dx. ओके, सो मैंने वही काम किया है. एंड गाइज लेट्स से दिस इज आवर i1. सो ये मेरा बन गया 0 से a fx into dx प्लस i1. ओके, नाउ i1 को हम अलग से सोल्व कर रहे हैं. सो वी हैव a से 2a fx into dx. ओके, सो पहली वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने में मैंने यहाँ पर x को माइनस y से रिप्लेस किया था और यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ x को 2a माइनस y से. ओके गाइज, ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको इस बात का हिंट नजर आया कहीं कहीं? देखिए,
भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, या तो 0 हो रही है या फिर आपकी 2 टाइम्स ये हो रही है ना, ओके। और क्या होता है 2a माइनस एक्स, ओके गाइज। सो कहीं ना कहीं मैं इस x को 2a माइनस एक्स बनाना चाह रहा हूं, है ना। सो दैट वी कैन अप्लाई दिस कि अगर ये आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल तो वो मेरा 0 हो जाए, है ना, ताकि मेरे केसेस बन जाए। सो वहां से आप ये चीज रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन रिमेंबर कि मैं x को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा 2a माइनस वाई से, सो योर dx विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy। देन गाइज I1 विल बी यस जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट मीन्स जब मैं x को a पुट करूंगा, सो a माइनस 2a क्या हो जाएगा मेरा माइनस a, देन योर लोअर लिमिट विल बी a डियर स्टूडेंट्स। और जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी 0। सो गाइज वी हैव f ऑफ 2a माइनस वाई एंड dx इज माइनस वाई माइनस dy, तो ये मेरा माइनस बाहर आ गया, ओके। देखो सेम वही काम करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, देन योर क्या होगा आपका इंटीग्रल जो है वो माइनस टाइम्स हो जाता है। सो इसको मैं लिख दूंगा 0 से a f ऑफ 2a माइनस वाई इंटू डी वाई, ओके। एंड हियर यू विल राइट द रीजन कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। सो गाइज वी हैव स्टडीड ए प्रॉपर्टी की a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो यू विल राइट दिस रीजन हियर, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सर यू कैन ऑल्सो चेंज द वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा मेरा f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ओके गाइज। सो दिस इज आवर I1, ओके। नाउ आपने यहां तक सबको समझ आ गया, नोट कर लिया होगा। सो ये जो अपना I1 जो आया है उसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, ओके। आई एम पुटिंग I1 हियर। सो गाइज we have 0 to a fx into dx प्लस I1 जो है वो क्या है मेरा 0 to a f of 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब गाइज हमारे वही दो केस बन जाएंगे। केस 1, सर कितने केस लगाओगे, केस 1 क्या है कि जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो इक्वल हो जाए मेरा एफ एक्स के, डियर स्टूडेंट्स। सो ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, देन यू विल हैव सेम इंटीग्रल। सो गाइज वी विल हैव I इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। एंड केस 2 जब बच्चों मेरे पास होगा f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, देन गाइज दोनों आपके कैंसल हो जाएंगे, देन योर I विल बी इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये तो हो गया हमारा इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, ओके। नाउ सर ये तो बताओ हमें कहाँ इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, कि सर हम कहाँ इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। सो बच्चों मैं स्टार्टिंग से क्या बोल रहा हूं कि आपके पास ऐसी दो प्रॉपर्टीज आती है जिनका लोअर लिमिट 0 हो, ओके। सो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या आपकी लोअर लिमिट 0 है, ओके। सो अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है, इफ योर लोअर लिमिट इज 0, देन व्हाट विल वी डू, देन वी विल x को मैं चेंज कर दूंगा किससे, x को चेंज कर दो आप 2a, जो ऊपर वाली जो लिमिट है ना वो माइनस x से चेंज कर दो, ओके। नाउ चेंज करने पर अगर मेरा फंक्शन क्या हो, चेंज ना हो, इफ फंक्शन डू नॉट चेंज, अगर मेरा फंक्शन चेंज ना हो रहा हो, देन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, ओके गाइस, समझ गए। देखिए हमने P4 भी पढ़ा था, वहां क्या है वहां कि इफ यू हैव 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो माई डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ यूज करते हैं
कि सर मैं यहाँ पर x को करूँगा a माइनस एक्स से रिप्लेस, और अगर मेरा जो फंक्शन है वो चेंज हो गया, इफ फंक्शन चेंजेस देन वी अप्लाई P4, यस और नो। और अगर आपका फंक्शन चेंज ना हो तो फिर मैं अप्लाई करता हूं दिस प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आप माइंड में बिठा लीजिए। आई होप सबको समझ आया होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ वी हैव डियर स्टूडेंट्स 0 से पाई, ओके, एंड वी हैव cos ऑफ x इंटू डी एक्स, ओके। सो मेरे माइंड में एक चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए कि यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 0 है। सो सिंपली पुट क्या करेंगे, x को मैं पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, ओके। नाउ क्या बनेगा मेरा फंक्शन, कोस ऑफ पाई माइनस एक्स बन जाएगा ना। सो पाई कोस पाई माइनस एक्स इज ओके, कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है मेरा, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, सो दिस विल बी डियर स्टूडेंट्स माइनस का कोस एक्स। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, देखिए ये किसके खिला रहा है मेरा चेंज करने पर, ये मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स है ना। सो लिमिट्स चेंज, ये आपका वेरिएबल चेंज करने पर दैट मीन्स पाई माइनस एक्स रखने पे ये माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है, माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है। दैट्स वाई देखो आ रहा है ना, ये वाले केस बन गया ना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जब मेरा माइनस एफ एक्स हो देन सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा 0, ओके। और ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, देखो कोस का क्या होता है, साइन होता है ना, इंटीग्रल कोस का इंटीग्रल साइन होता है, लिमिट आपकी 0 से पाई है। नाउ साइन पाई इज 0, साइन 0 भी आपका 0, दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, ओके। नाउ क्या करेंगे, मैं x को चेंज कर दूंगा पाई माइनस एक्स से, तो ये फंक्शन क्या बन गया मेरा, साइन पाई माइनस एक्स बन गया, और वो मेरा क्या है साइन एक्स ही होता है। सो यहाँ पे x को पाई माइनस एक्स रिप्लेस करने पर मेरा फंक्शन वही रहा। सो गाइज व्हाट विल वी डू, वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। सो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर पाई है, ओके। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू पाई बाई 2, सो दैट वी कैन हो दिस 2a, ताकि मेरे पास ये 2a बन जाए। नाउ दिस 2 विल बी टेकन आउट एंड गाइज वी विल हैव 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ओके। कैन वी डू दिस, यस, इसको आगे मैं सोल्व कर लूंगा, ओके, यस। सो मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे हमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ओके गाइज, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से फीलिंग आए जो अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, ओके। सो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी जिसको मैंने नहीं करवाया बिकॉज उनका कोई यूज नहीं है, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ ए स्पेशल क्वेश्चन। I am discussing a question here guys. We have the question is, let me just check, okay। now question है हमारा a to b fx into dx x into fx into dx, ये हमें फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या डियर स्टूडेंट्स, गिवन है मुझे कि f of a plus b minus x दिस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स, ओके। ये अपने को गिवन है और हमें इसको सोल्व करना है। सो लेट्स सोल्व, टिंग टोंग, ओके। आप खुद बताओ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहां पे अप्लाई करनी चाहिए। क्या ओड इवन लगेगा, नहीं लगेगा। क्या यहां पे आपकी प्रॉपर्टी 7 लगेगी, नहीं, बिकॉज यहां पे 0 नहीं है। तो कौन बचा, बच्चा कौन फिर, ए टू बी प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके गाइज।
मैन मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 7, उसके लिए लोअर लिमिट आपकी 0 होना मस्ट है। यहाँ पे 0 नहीं है, उसको कैंसिल कर दो। ओड इवन वाली प्रॉपर्टी, वहां पे -a से a टाइप की होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो उसको भी कैंसिल कर दो। फिर कौन सा बचा मेरे पास, वो स्प्लिटिंग वाला। क्या स्प्लिटिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? नहीं। स्प्लिटिंग कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग? जब हमारे पास क्या हो, मॉडुलस फंक्शन हो, या फिर मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, या फिर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सो मैंने वो भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की। क्या बचा फिर? प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, सो अप्लाई P4। सो गाइज यूजिंग P4, आई एम यूजिंग P4 हियर। सो P4 क्या होता है देखिए जरा, कि a to b fx into dx is equal to, dear students, we have a to b f of a plus b minus x into dx. Okay, so let's apply P4 guys. So this will be from a to b, x मेरा रिप्लेस हो जाएगा इससे। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। a to b, okay guys, so a plus b minus x, और ये क्या दे रखा है अपने को, दिस इज इक्वल टू f of x. So guys, I will write fx into dx. Okay, now what can I do? Sir, you can separate. कैसे सेपरेट करेंगे कि सर एक आप बना सकते हो a plus b into fx dx, दूसरा बन जाएगा मेरा a to b x into fx dx. This is our I. Now guys, okay, ये क्या हुआ? ये तो वही आ गया आपका जहां से आपने इंटीग्रल माना था ना। So, इसको मैं क्या बोल दूंगा? I. ओके, नाउ माइनस आई वहां जाएगा, सो दिस विल बी, डियर स्टूडेंट्स, 2i. ओके, सो 2i इक्वल्स टू गाइज a से b fx इंटू डी एक्स, एंड ये तो कांस्टेंट है सर, इसको तो बाहर निकाल दो, क्यों लेके चल रहे हो अंदर। ओके, नाउ दिस 2 विल गेट डिवाइड, तो ये हमारा डिवाइड में हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। a प्लस बी बाई 2, a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, आपकी बुक में ये एक अलग प्रॉपर्टी बना रखी है, बट क्या मैंने कुछ इसमें अलग यूज किया? नहीं यूज किया। जब भी क्वेश्चन में इस टाइप से आएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ हम लोग बिना कुछ सोच समझे कर सकते हैं। ओके, यस, आपकी बुक में इसका नाम दे रखा है रिडक्शन प्रॉपर्टी, एलिमिनेटिंग एक्स प्रॉपर्टी, पता नहीं, एलिमिनेटिंग एक्स प्रॉपर्टी, एलिमिनेटिंग एक्स प्रॉपर्टी इसको बोल रखा है। ओके, बेसिकली ये जो आपका x है ना, इसको मैंने रिमूव किया है, तो मैंने कुछ नया मेथड यूज किया ही नहीं, तो मैं इसको क्यों अलग से पढ़ाऊं? मैं इसको एज ए क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट do some questions. Okay, let's take some questions. So we have finished all the properties. अब हमें जम के एग्जाम्पल्स करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, और लास्ट में जाके फिर हमें मिसलेनियस करनी है। देयर गाइज वी विल हैव मिक्स्ड क्वेश्चंस, तो वहां पे मेरा माइंड और अच्छे से साफ हो जाएगा। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 12 मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। ओके, सो वी हैव 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ओके, ये मेरा इंटीग्रल है, इसको मुझे सोल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं भी। सो गाइज लुक, भी यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, सो मेरे पास दो प्रॉपर्टी है। मैं बार बार बोलूंगा ये बात जब तक आपके माइंड में ना बैठ जाएगी। भी लोअर लिमिट आपकी 0, देन यू कैन आइदर अप्लाई प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 7। ओके, लेट्स चेक इट आउट। सो जब मैं इसमें x को रिप्लेस करूंगा पाई माइनस एक्स से, सो दिस विल रिमेन सेम। साइन पाई माइनस एक्स भी मेरा
साइन एक्स ही हो जाएगा। तो बच्चों ये चेंज नहीं हुआ आपका, ये भी चेंज नहीं हुआ, बट आपका एक्स चेंज हो गया। सो आई कैन से एज ए होल मेरा पूरा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा भी। जब आपका फंक्शन चेंज हो रहा हो तो मैं प्रॉपर्टी 4 के साथ जाता हूं। अगर फंक्शन मेरा चेंज नहीं हो रहा तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के साथ जाता हूं। सो मैं तो यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के साथ जाने वाला हूं। सो 0 से पाई, बच्चों पाई माइनस एक्स इंटू वी विल हैव साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू dx. So guys, this will be from 0 to pi भी साइन पाई माइनस एक्स मेरा साइन एक्स ही चल रहा है, 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा माइनस कोस एक्स, बट उसका स्क्वायर है तो ये तो वही आ गया भी कोस स्क्वायर एक्स। ओके गाइज, नाउ अब क्या करेंगे सर अब इसको सेपरेट कर लीजिए आप लोग। सो मेरे पास एक बन जाएगा पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड दूसरा माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड 0 से पाई। भी ये तो वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो सर इसको तो आप आई ही मान लो, माइनस आई वहाँ जाके प्लस का 2i हो गया। सो 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। सर पाई तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, क्यों लेके चल रहे हो साथ में, साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके गाइज, नाउ दिस 2 विल कम हियर, डिवाइड में आके बैठ जाएगा। ओके, नाउ कैन आई सोल्व दिस इंटीग्रल? Yes, what will we do? We will put cos x को t। देखिए अगर आपको इनडेफिनेट नहीं आता तो आपसे डेफिनेट नहीं बनेगा फिर। तो यहाँ पे सर cos x को आप t पुट कर लीजिए। सो इसका जो माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो dt हो जाएगा। ओके, और जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे दैट मीन्स व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन गाइज t विल बी इक्वल्स टू 1, एंड व्हेन x equals to upper limit that is pi, so guys you will have t equals to cos pi that is minus 1। okay, so I मेरा आ गया यहाँ से pi by 2, 0 से the limit will change। okay, ये आपका 1 से -1, एंड ऊपर वाला कंप्लीट मेरा बन चुका है माइनस का dt माइनस को मैंने यहाँ पे रख दिया, एंड डिनोमिनेटर बना है मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज माइनस पाई बाई 2। ये तो जाना पहचाना है सर, tan इनवर्स t, दिस इज tan इनवर्स t एंड लिमिट फ्रॉम माइनस दिस। ओके, नाउ सिंपली पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके गाइज, सो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा तो वी विल हैव tan इनवर्स -1, tan inverse -1 minus of lower limit that is tan inverse 1। so guys we will have minus pi by 2, this is minus pi by 4 and minus of pi by 4। okay guys, so minus pi by 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, ये भी मेरा माइनस पाई बाई 2 बनेगा, माइनस माइनस से प्लस हो गया, एंड वी विल हैव पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4। ओके गाइज, और यही हमारा आंसर है, पाई स्क्वायर बाय 4। ओके, सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 13। ओके, नाउ गाइज एग्जाम्पल नंबर 14 हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज जो स्टार्ट किया था ना वहाँ पे मैंने करवा दिया था एग्जाम्पल नंबर 14 फर्स्ट वीडियो में, और एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने
प्रॉपर्टीज ऑफ डी आई की सेकंड वीडियो में करवाया था, तो आप वहां से देख सकते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर प्रॉपर्टी नंबर, वो स्प्लिटिंग वाली जो प्रॉपर्टी थी ना उस पर बेस्ड थे। ओके, नाउ लेट्स डू ए इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। ओके, इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर एग्जाम, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है एज ए क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज 0 से π/2 log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, log ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। और सेकंड छोटा भाई इसका 0 से π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स। इन दोनों को मैं एज ए क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं और दोनों की वैल्यूज आपके पास सेम ही आने वाली है। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी। सो गाइज देखो, जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं ना उनको केवल ध्यान रखिए, क्वेश्चंस आपके अपने आप सोल्व होंगे। सो बेसिक्स क्या बताया मैंने कि अगर आपके पास लोअर लिमिट 0 है तो यू कैन आइदर अप्लाई प्रॉपर्टी 4 और 7। नाउ देखिए π/2 माइनस एक्स पुट करिए तो यहाँ पे मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है ना। सो वी विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 4, और 4 है क्या वो मैं लिख दूंगा कि इफ यू हैव 0 to b fx into dx। सो गाइज इसको मैं लिख दूंगा 0 से b f ऑफ b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ओके, सो लेट्स से दिस इज i। सो गाइज वी विल हैव 0 से π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज i 0 से π/2, ये क्या बन जाता है मेरा सबको पता होगा log ऑफ cos x इंटू डी एक्स, बिकॉज π/2 इज चेंजेबल, सो साइन विल चेंज इंटू cos। ओके, now guys this is equation number 1, equation number 2। okay, now after applying property 1 property number 4 we add करते हैं ना। तो यहां से guys 2i जो है वो हमारा आ गया 0 से π/2 log ऑफ साइन x प्लस 0 से π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है कि जब आपकी लिमिट सेम हो तो आप उनको एक साथ लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 0 से π/2 log ऑफ साइन x प्लस log cos x इंटू डी एक्स। ओके गाइज, सो यहां से 2i मेरा क्या बन रहा है 0 से π/2। नाउ कैन यू सी द log प्रॉपर्टी की log ऑफ a प्लस log b इज log a इंटू log b। सो गाइज वी विल हैव log ऑफ साइन x इंटू cos x और dx। ओके, व्हाट नेक्स्ट सर, आपके पिटारे में नेक्स्ट क्या है? यस बच्चे, देखिए 0 से π/2 log ऑफ भी, ये कुछ जाना पहचाना नहीं है क्या कि साइन 2x होता है सर मेरा 2 साइन x cos x, है ना। और साइन x cos x क्या हो जाएगा साइन 2x/2। वेरी गुड, साइन 2x/2, साइन 2x/2 इंटू डी एक्स। ओके, सो 2π सर दिस इज log ऑफ a/b। तो सर ये तो 2 तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना इंटीग्रल से। सो सर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे log ऑफ a/b की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x एंड गाइज वी विल हैव 0 से π/2 log ऑफ 2 into dx। Am I right? Yes. So this will be 0 से π/2 log of, okay, now ये जो आपका इंटीग्रल है इसको मैं अलग से सोल्व करूंगा, तो मैंने इसको बोल दिया I1।
माइनस, ये तो सोल्व हो चुका है अपना, log 2 बाहर आ जाएगा एंड वी हैव 0 से π/2 इंटू डी एक्स। सबको पता है कि I1 माइनस log 2, तो डी एक्स का क्या होता है 1। ओके, तो 1 में फिर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, यही तो होगा। x dx क्या होता है आपका x होता है ना। नाउ सो गाइज ये क्या बना I1 माइनस ऑफ log 2। अब इसमें अपर लिमिट पुट करो तो ये π/2 हो जाएगा और लोअर लिमिट पुट करने पे ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। सो वी विल हैव I1 माइनस π/2 log 2। ओके गाइज, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सबको समझ आ गया? ओके, एक बार इस चीज को यहां तक समझ आ गया हो तो टेक ए स्क्रीनशॉट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे केवल sin 2x को सोल्व करना है। ओके हाँ, एक बार के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका ये हो 0 से π/2 log ऑफ cos x इंटू डी एक्स, तो क्या होने वाला है सर, यहाँ पे log ऑफ cos x इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो वही मैं P4 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे साइन की जगह क्या बनेगा, कोस बन जाएगा। ओके, देन कोस π/2 माइनस एक्स मेरा हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। ओके गाइज, सो यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे आपका क्या है log ऑफ कोस एक्स। तो फिर मैं उन दोनों को जब ऐड करूंगा तो आगे तो यही बनने वाला है आपका, है ना, आगे से तो आपका सेम ही बनेगा। फिर भी इसमें जब मैं P4 अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, log ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। आफ्टर दैट आई ऐड, सो मैंने इसको ऐड करना है किसके साथ में इसके साथ में, देन यू विल हैव द सेम थिंग। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आने वाला है। ओके, नाउ कर लोगे ना log ऑफ cos x इंटू डी एक्स वाले का भी, देखो इसको आप i मान लो ना, इसमें मैं P4 अप्लाई कर दूंगा तो 0 से π/2 ये आपका बन जाएगा log ऑफ sin x इंटू डी एक्स। दिस इज फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। नाउ ऐड 1 + 2, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आपका बनेगा 2y इक्वल्स टू 0 से π/2 दिस प्लस दिस। ओके, आगे तो आपका सेम ही चलने वाला है काम। ओके यस, नाउ सो गाइज हमने कहाँ तक, यहाँ तक सोल्व कर लिया और अब हमें सोल्व करना है I1 को। अब हमें सोल्व करना है I1 को। सो I1 है मेरा 0 से π/2 log ऑफ sin 2x। ओके गाइज, नाउ व्हाट विल वी डू कि मैं इस 2x को सब्सटीट्यूट करूंगा t से, सो वी विल हैव 2dx इक्वल्स टू dt। सो जो मेरा इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, देखिए जरा, इंटीग्रल जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, look, so log of sin t, this is dx here, so यहाँ पे क्या जाएगा dt/2 है ना, dx क्या हो जाएगा मेरा dt/2, तो 2 हाफ मेरा बाहर आ गया। ओके, आपकी लिमिट क्या होगी कि जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो x को जब मैंने 0 पुट किया तो क्या हो गया आपका, वो लोअर लिमिट 0 आ गया। अपर लिमिट पुट करने पे दैट इज x को π/2 पुट करने पर तो t का वैल्यू मेरा आ जाएगा पाई। सो 0 से पाई log ऑफ साइन t इंटू डी टी। क्लियर सबको? अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सर आप इस वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। गाइस ध्यान रखना, इसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है। स्टार्टिंग में मैंने यूज किया P4, आफ्टर दैट मेरा ये sin 2x बना तो मैं साइन इसमें 2x को t पुट करूंगा। वो करने के बाद मैं यूज कर रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, है ना, यूजिंग P1। P1 क्या बोलता है, यू कैन चेंज द लिमिट्स, सो fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a टू b f ऑफ t इंटू डी टी। सॉरी मैंने बोला यू कैन चेंज द लिमिट्स, बट इट इज यू कैन चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल चेंज कर सकते हैं। सो मैंने वही काम किया अभी। सो मेरा I1 आ चुका है यहाँ तक।
ओके क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू फर्दर, देखिए फिर से वही आपका जीरो बना, यहाँ पे जीरो से पाई है, जीरो से पाई, तो मेरे पास दो लिमिट्स होती है, मेरे पास दो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सर आप x को रिप्लेस करो पाई माइनस एक्स से, तो जब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ पाई माइनस एक्स से, तो क्या मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है, मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, मेरा साइन एक्स ही होता है। सो सर आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 7। सो गाइज मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करूंगा बिकॉज मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। ओके सो इससे आगे I1 है हाफ, यहां लिख, सो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 करूंगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि सर ये जो पाई है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू पाई बाई 2, बिकॉज मेरा प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो अपर लिमिट था वो 2a की फॉर्म में है। तो मैंने इसको लिख दिया दिस, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज कर सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे आप यूजिंग P7 और वो प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन क्या है वो भी आप लोग लिखने वाले हैं। ओके गाइज, सो क्या होता है कि ये जो 2 है वो मेरा आगे आ जाता है, सो मल्टीप्लाई में 2 एंड 0 से पाई बाई 2 गाइज वी विल हैव log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके मैंने क्या यूज किया, मैंने यहां पर P7 को यूज किया जो है 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाता है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। कब होता है गाइज, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स मेरा एफ एक्स के इक्वल हो, दैट मीन्स आपका फंक्शन चेंज ना हो। अगर ये माइनस एफ एक्स बन जाए तो वो हमारा 0 हो जाता है, बट यहाँ पे तो आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो ये मेरा ऐसे बन गया। सबको समझ आ गया होगा। सो गाइज 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके सो व्हाट नेक्स्ट, सर ये तो आपका वही बन गया जहां से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। सो गाइज इसको मैं क्या बोल दूंगा, आई। तो इतनी मेहनत करने के बाद क्या निकला कि जो आपका I1 है वही मेरा I है, I1 is equal to I. Okay, so now I am going to put this in equation number 3rd. Okay, so मैं इस साइड वाला हटा दूं एक बार के लिए। Okay, so putting I1 equals to I in equation number 3rd, so guys we will have 2I equals to I minus पाई बाई 2 log of 2, है कि नहीं, yes. Now this I will go to that side and you will have I equals to minus पाई बाई 2 log 2, और यही मेरा आंसर है। ओके सो गाइज वी विल हैव कि दिस इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2 एंड ये मेरा इसके भी इक्वल होगा। सबको समझ आ गया। एक बार इस वाले क्वेश्चन को मेरे कहने पर दोबारा जरूर देखना, ठीक है ना, ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ आ जाए। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो remaining questions we will do in our next video. Okay guys, so take care, bye, see you in the next video. Till then, take care, bye, thank you.